Good morning, students. I am Mrs. Navdeep Kaur. Hope you all are doing well. Roland Barthes, a French literary critic and theorist, has written the book The Death of the Author. It was written in 1967 and published in 1968. Roland Barthes break the traditional beliefs and suggests reader to ignore the life of author and his views about the text. He opposed traditional criticism of critic and gave importance to language, art, and the reader. As it is rightly said, that don't judge a book by its outer cover. Don't judge a person by its outer personality, as we used to say. In the same way, Barthes says that don't judge a book by the name of its writer. You should read firstly, and it is language and writing skill of a writer which describe its true meaning according to reader's point of view. He break the traditional roles and position of the authors. Now he makes his reader aware of writing, how to read a writing. According to him, only reader are there who will judge the book. If the book is having great capability of describing message or anything else. Death of the Author is an attack on traditional literary criticism that focus too much upon the author's intention and consider the meaning presented by him as one and only original meaning of the text. Means हमें सिर्फ टेक्स्ट को फॉलो करना है, ना कि इंटेंशन देनी है राइटर के नेम के ऊपर. राइटर जो है ओनली एक स्क्रिप्ट राइटर है, उसने उस स्क्रिप्ट को लिख दिया है, बट द रियल मीनिंग नाउ रीडर विल फाइंड इन द राइटिंग. Here again there is the original quotes by Barth. The author is merely a scripter. These words are used by Roland in his text. Scripters' only power is to combine pre-existing text in new ways. Means जो राइटर है वो सिर्फ अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक टेक्स्ट को मीनिंग देता है, लेकिन जो उसकी जजमेंट हमने करनी है मीन्स रीडर ने करनी है, वो उसकी लैंग्वेज को देख के करनी है. राइटर ने सिर्फ अपनी बात कह दी विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. यहाँ पे फिर कह रहा है कि जो रियल मीनिंग है बुक का वो रीडर फाइंड आउट करेगा, ना कि अकॉर्डिंग टू ऑथर we will judge the book. Language itself will be the impression on the reader. Impression of author should not be there. Biographical impression or any other impression should not be there. Here the meaning of death of the author means not physical death but metaphorical death of the author. Means reader should ignore the image of writer from their minds. It is attack on classical criticism because classical criticism के अंदर इंटेंशन दी जाती थी राइटर के नेम को. Who has written the book, why he has written the book, and what are the main mottos of writing a book, मेन इंटेंशन ऑफ राइटिंग द बुक. बट बार्स कहता है कि हमने अब इंटेंशन राइटर को नहीं देनी. वट एवर ही हैज़ रिटन वी शुड फोकस ऑन द मेन थिंग्स विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज.
वी शुड नेग्लेक्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ऑथर, बायोग्राफी भी हमने नहीं देखनी, सोशल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स क्या हैं ऑथर की, उस सब को हमने ध्यान में रखे बिना बुक को रीड करना है। द बर्थ ऑफ द रीडर मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ डेथ ऑफ द ऑथर। रीडर का जन्म कब होता है? जब डेथ ऑफ द ऑथर होती है। यहाँ पे डेथ ऑफ द ऑथर, अगेन आई एम सेइंग, डेथ ऑफ द ऑथर का मतलब ये है कि वी शुड इग्नोर द अपीयरेंस ऑफ ऑथर फ्रॉम आवर माइंड। हमने अपने माइंड में ऑथर के को इंटेंशन नहीं देनी, तभी एक रीडर का जन्म होता है। मीन्स रीडर के अंदर के विचार बाहर आते हैं आफ्टर रीडिंग द बुक। जब हम ऑथर को इग्नोर करते हैं कि ऑथर क्या कह रहा है, ऑथर की इंटेंशन क्या है बुक में कहने की, इन सभी बातों को हम इग्नोर करते हैं, तभी हमारे खुद के व्यूज़ आते हैं कि हमने बुक को रीड करके क्या सीखा, क्या समझा, क्या पाया, और क्या हम सोचते हैं, उस बुक को कैसे जज करते हैं कि इस बुक की लैंग्वेज क्या कह रही है। राइटर क्या कह रहा है वो बात अलग है। राइटर जो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज कह रहा है, उसको हम अपने मीनिंग में कैसे उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। वही बात, ऑथर को गॉड टाइप नहीं समझना हमने जिसने क्रिएट किया है। ऑथर को सिर्फ एक क्रिएटर मानना है, वो उसको इतनी पावर नहीं देनी कि वो उसका मीनिंग भी डिसाइड करे कि क्या मीनिंग निकला, क्या इम्पैक्ट हुआ रीडर पे आफ्टर गिविंग द रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट। Barthes argue against the method of reading and literary criticism, which analyze a literary work on the basis of information about the real life of author of the text. कभी कभी ऐसा भी होता था क्लासिकल क्रिटिसिज्म में कि जो राइटर की लाइफ है, ऑथर की जो रियल लाइफ है, उसका इम्प्रेशन उसके वर्क में भी आ जाता था। नेचुरल है, जो इंसान कुछ लिख रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका अपनी लाइफ से रिलेटेड इम्प्रेशन उसकी राइटिंग पे होगा। या रीडर्स जब पढ़ रही हैं उनको फुल डिटेल का पता है कि रीडर कहाँ से राइटर कहाँ से, रीडर को पता है कि राइटर कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड का है, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो किसके बारे में बात कर रहा है। अगर हमें ये सब कुछ पहले से ही पता है तो हम बुक को अच्छे से जज नहीं कर सकते। हमें जब भी किसी बुक को पढ़ना है तब हमने ऑथर को नहीं, उसने लैंग्वेज के अंदर किस बात को दिखाने का प्रयत्न किया है उस पर ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू बाथ, द रीडर मस्ट सेपरेट अ लिटरेरी वर्क फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स क्रिएटर to liberate the text from interpretive tyranny so that the text can be looked at from different perspective. यहाँ पर बास कह रहा है कि अगर हम अपने डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव से रीडर एक बुक को जज करता है तो काफ़ी सारे मीनिंग यहाँ पर निकल कर आते हैं। एक पर्सन कुछ सोचता है, उसको बुक को रीड करने के बाद सेकेंड कुछ और सोचता है, इसलिए यहाँ पर हमें मल्टीपल मीनिंग्स मिलेंगे एक बुक को रीड करने के बाद। मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ रीडर्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज अबाउट अ बुक, सो वी शुड नॉट फोकस ओनली ऑन अ ऑथर्स व्यूज। टेक्स्ट इज टिश्यू ऑफ कोटेशंस। बास सेज द टेक्स्ट इज टिश्यू ऑफ कोटेशंस। टेक्स्ट सिर्फ एक टिश्यू का काम करता है, एक फैब्रिक है जिसके ऊपर राइटर ने अपनी कोटेशंस लिखी हैं। यहाँ पे कोटेशंस का मतलब लैंग्वेज से है। टेक्स्ट के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो वोकैब यूज़ की गई है, जो मीनिंग हमें निकल कर आ रहा है सामने, उस पर हमने जजमेंट करनी है। टेक्स्ट तो सिर्फ एक टिश्यू का काम करता है, मेन उसका पर्पस लैंग्वेज से होता है। यहाँ पर फ्रेंच पोएट और क्रिटिक स्टीफन ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई है। इट इज़ अ लैंग्वेज दैट स्पीक्स, मीन्स लैंग्वेज ही है जो बोलती है, इसलिए हमने लैंग्वेज पे फोकस करना है,
what the writer is saying with the help of language. लैंग्वेज बता रही है कि मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट क्या है. हमने ये जज लैंग्वेज से करना है कि उसकी स्किल ऑफ लैंग्वेज यूजिंग द वोकैबुलरी, इमेजरी, वट एवर ही इज डूइंग इन हिज राइटिंग, इज इट ओके और नॉट. He is having the capability to explain the book or not with the help of language. मीन्स मेन फोकस लैंग्वेज पे होना चाहिए. एक राइटर ने बुक लिखी है, वो बुक अच्छी है या नहीं है. एज ए क्रिटिक हाउ वी विल जज विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ओनली. बैकग्राउंड हिस्ट्री और एनी अदर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑथर शुड नॉट बी देयर. एज वी हैव रेड रामायणा, जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी थी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर. तो यहाँ पे वाल्मीकि जी सिर्फ एक राइटर हैं. जो मेन मकसद उन्होंने कैसे लिखी, किस वे में लिखी, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की, वो अधिक मैटर करती है बात. कैसे जो राइटर है उन्होंने लिख दी, लेकिन आज हम रीडर हैं, वो किस नज़र से पढ़ रहे हैं उस रामायण को, या हमारे दिल पर उसका क्या असर है, उसको पढ़कर रीडर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ओनली. उस लैंग्वेज की क्वालिटी है यहाँ पर कि वाल्मीकि जी तो सिर्फ एक राइटर थे, रामायण के राइटर थे वाल्मीकि जी. संस्कृत लैंग्वेज उन्होंने इस रामायण को लिखा, तो वो सिर्फ एक राइटर थे. अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें उसका रियल मीनिंग बता रहा है कि उन्होंने कैसी लैंग्वेज यूज़ की. उनका जो इतनी वो फेमस हुए हैं, वो किस वजह से फेमस हुए हैं कि उनकी बैकग्राउंड से वो फेमस नहीं हुए. उन्होंने कितने अच्छे तरीके से रामायण को प्रेजेंट किया, ये ज़्यादा मीनिंगफुल है. यहाँ पर बास इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी से भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं. आयर रिचर्ड और विमसेट, इन्होंने एसेज लिखे थे इंटेंशनल फैलेसी ऑफ एंड अफेक्टिव फैलेसी. These essays also have great effect on the book of the death of the author. Roland thinks, like Ayer Richard or Wimsatt, that intentional fallacy and affective fallacy affect the readers. Intentional fallacy means Wimsatt also saying that readers should not give intention to the writer's background history. Affective fallacy means we should not have personally emotions for author. अफेक्ट नहीं करने चाहिए, हमारे इमोशंस भी अफेक्ट ना करें जब हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं. इंटेंशनल फैलेसी में कहा गया था कि हमें इंटेंशन नहीं देनी. ये दो ऐसे भी काफ़ी फेमस हुए हैं. इसका असर रोलैंड के ऊपर था. ही लर्न्स मेनी न्यू थिंग्स फ्रॉम दीज एसेज. इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी, दीज आर एसेज. रीडर मस्ट सेपरेट अ लिटरेरी वर्क फ्रॉम इट्स क्रिएटर. मीन्स क्रिएटर से हमें अपने लिटरेरी वर्क को अलग कर लेना है. हमने जजमेंट लिटरेरी वर्क की एज अ क्रिटिक और एज अ रीडर उसकी लैंग्वेज से करनी है, इसलिए हमने सेपरेट कर लेना है लिटरेरी वर्क को इट्स क्रिएटर से. मीन्स ऑथर और बुक को अलग अलग करके हमने उस बुक की जजमेंट करनी है. यहाँ पर रीडर के ऊपर प्रेफरेंस दी गई है कि इट्स रीडर हु मेक्स मीनिंग. रीडर है जो उस टेक्स्ट का मीनिंग क्लियर करेगा कि आफ्टर रीडिंग अ बुक व्हाट ही थिंक्स अबाउट द बुक. Barthes is not interested in true meaning of the text. Means whatever writer is saying, Barthes has no interest in that meaning. He thinks that reader should find his own meaning.
Literary works must not be analyzed based on personal context of the author. This is the main center idea of the book. यहाँ पे डेथ ऑफ द ऑथर जो कि टाइटल है उसका मतलब रियल डेथ ऑफ द ऑथर नहीं है. मेटाफोरिकल मीनिंग्स ही हैज़ एक्सप्लेन. ऑथर्स डेथ मीन्स टू नेग्लेक्ट द appearance of author. I think you have understood each and every content of the book. Thank you.